Hello everyone. In previous video we have learned about states of processes in operating system and in this video we will see कि जो वो states होती हैं वो किस memory में store होती हैं, main memory में होती हैं या फिर secondary memory में. So here you can see present in memory and states are given. If we talk about new state will be in secondary memory. रेडी स्टेट जब अब रेडी हो गया रेडी स्टेट में चला गया तो वो कहाँ जाएगा मेन मेमोरी में. रन स्टेट मेन मेमोरी, वेट स्टेट मेन मेमोरी, सस्पेंडेड वेट स्टेट सेकेंडरी मेमोरी और सस्पेंडेड रेडी स्टेट विल बी इन सेकेंडरी मेमोरी ओनली. क्योंकि सस्पेंड हुआ है थोड़ी देर के लिए तो वो सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा. और जब भी मेन मेमोरी में हमारी स्टेट होगी या तो वो रेडी होगी या फिर वो रन कर रही होगी या फिर वो वेट कर रही होगी फॉर द प्रोसेसेस टू रन. नाउ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इन ओएस. अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होते हैं ओएस में. A program is fetched from the secondary memory and kept in the job queue by the job scheduler. This state is called a new state. From the job queue, the process is brought to the ready queue. This task is done by the long-term CPU scheduler. तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब fetch करते हैं प्रोग्राम को from secondary memory और उसको job queue में रखा जाता है किसके द्वारा, job scheduler के द्वारा. And this state is called new state. और second है कि जब job queue बन जाती है हमारी और processes brought होते हैं to ready queue और ये टास्क किसके द्वारा किया जाता है, that is done by long term CPU scheduler. From the ready queue, the process is now ready for the execution and to be processed by the CPU. Now all the processes present in the ready queue are processed by the short term CPU scheduler. अब जब ready queue से process ready हो जाती हैं for execution के लिए, अब वो process होती हैं किसके अंदर, CPU में. Now all the processes present in the ready queue are processed by the short-term scheduler, short-term CPU scheduler. तो आपको ध्यान रखना है कि long-term scheduler कहाँ लिखना है और short-term CPU scheduler कहाँ राइट करना है. आपको पता होना चाहिए कि जब job queue में आ रही है और किसके द्वारा ready queue में आ जाती है और जो task होता है वो long-term scheduler करता है और जब हमारा execution होता है and process करता है CPU तो वो किसके द्वारा ready queue से द्वारा प्रोसेस होने में कौन काम करता है, शॉर्ट टर्म CPU शेड्यूलर. After the scheduling process, one process gets picked up and is sent for execution, which is called running state. अब क्या होता है, जैसे ही scheduling process हो जाता है एक process को उठा के क्या किया जाता है, send किया जाता है for execution और ये उस state को हम क्या बोलते हैं, running state. Every process has a definite burst time associated with it, which is nothing but the total CPU cycle needed for the entire execution of the process. अब जो भी प्रोसेस होती हैं उनका एक बर्स्ट टाइम रहता है. वी विल डिस्कस अबाउट इट आफ्टरवर्ड जब हम एल्गोरिदम्स करेंगे. अभी आप इतना ध्यान रखिए कि कुछ उसका टाइमिंग्स गिवन होती हैं और which is nothing but the total CPU cycle needed कि कितना उसको CPU कितने टाइम के लिए चाहिए entire execution के लिए of the process. The most common scheduling algorithm processes the process in round robin टेक्निक. अब जो मोस्ट ऑफ द एल्गोरिदम्स होते हैं, जो कॉमन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होते हैं वो कौन से होते हैं जो प्रोसेसेस के लिए यूज किए जाते हैं, दैट इज राउंड रॉबिन टेक्निक. In this technique, a process executes for a certain time slice, time period, or context switching time, and then the algorithm contains context switch to the process just before that current process. अब इसके अंदर एक कुछ टाइम स्लाइस गिवन होता है, टाइम पीरियड गिवन होता है, जिस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है. ओके या तो इसके अंदर कोई कॉन्टेक्स्ट स्विच गिवन होते हैं टू प्रोसेस जस्ट बिफोर द करंट प्रोसेस. द करंट प्रोसेस, कॉन्टेक्स्ट स्विच का मतलब होता है कि दो प्रोसेसेस गिवन होंगी तो कुछ टाइम के लिए पहली प्रोसेस चलेगी और कुछ टाइम के लिए सेकेंड प्रोसेस चलेगी, तो उनके बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विच होता रहता है. The current process gets its chance for execution only after all the processes present in the ready queue gets executed for that time slice. अब जो current process होता है gets its chance for execution only, जब कब मिलेगा उसको, जब
सारी जो प्रोसेसेस रेडी क्यू में है गेट्स एग्जीक्यूटेड फॉर द टाइम स्लाइस, जो भी उनका टाइम होगा उतने टाइम के लिए वो चल जाए. This process is known as context switching, and this switching is taken care of by the context switcher or the OS. अब जो ये प्रोसेस है उसको हम context switching कहते हैं, और ये जो होता है ये कौन टेक केयर करता है, इसका context switcher होता है of the OS के अंदर होता है. अब हमारे पास राउंड रॉबिन एल्गोरिदम तो था ही, और उसके अलावा भी बहुत सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स रहते हैं. Another type of scheduling algorithm is also present, which possesses the process according to process priority. The higher the priority, the sooner the execution. अब राउंड रॉबिन में क्या था कि हमारे पास टाइम स्लाइस गिवन था या उनके अंदर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग थी प्रोसेसेस के बीच में, बट हमारा एक और एल्गोरिथम है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, जिसके अंदर हम प्रोसेस की प्रायोरिटी को देखते हैं. जिसकी हायर प्रायोरिटी होगी उसकी सूनर एग्जीक्यूशन हो जाएगी. इन दिस मोड ऑफ प्रोसेसिंग द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग डज नॉट हैपन. तो इसमें क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं होती है. पहले में हो रही थी राउंड रॉबिन में, बट यहाँ पीरियोडिटी के ऊपर ध्यान दिया जाता है. दिस टाइप ऑफ प्रोसेसिंग इज कॉल्ड पीरियोडिटी शेड्यूलिंग. In between the execution of a process, if the process needs any type of input from the user, then it moves out of there, waits for the user input, and is brought to the waiting stage. The program counter now points to the next current activity or the process. आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि जब भी ऐसा एग्जीक्यूशन होता है प्रोसेस का, तो अगर प्रोसेसेस को कुछ भी इनपुट चाहिए यूजर के द्वारा, तो वो क्या करते हैं, देन इट मूव्स आउट ऑफ देयर और वेट करता है यूजर की इनपुट के लिए, और किस स्टेज में चला जाता है, वेटिंग स्टेज में. और देन प्रोग्राम काउंटर जो पीसी रहता है, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं है, यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर है जो पॉइंट करता है नेक्स्ट करंट एक्टिविटी और द प्रोसेस. If a process waits for access to any device, then it resides in the device queue while being in waiting state. And if it is not getting a chance for access to that device, then the process further moves from waiting for the state to suspend state. If further resumes to suspend wait state, then it gets access. अब क्या है, अगर प्रोसेस वेट करता है एक्सेस के लिए किसी भी डिवाइस की, देन इट रिसाइड्स इन द डिवाइस क्यू. उसको कहाँ रहना पड़ेगा, डिवाइस क्यू में, व्हाइल इट बीइंग वेटिंग स्टेट, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेटिंग स्टेट बोल रहे हैं. एंड इफ इट इज नॉट गेटिंग अ चांस फॉर एक्सेस टू द डिवाइस, तो वो क्या करेगा, processes further move from waiting for the state to suspended wait state पे. अब उसको ज्यादा वेट करना पड़ेगा, तो वो कहाँ चला जाएगा, प्रोसेसेस वेट से स्टेट टू कौन सी स्टेट में, सस्पेंडेड वेट स्टेट में चले जाएगा. इफ इट फर्दर रिज्यूम्स टू सस्पेंडेड वेट स्टेट व्हेन इट गेट्स एक्सेस, अगर उसके बाद वो रिज्यूम हो गया सस्पेंडेड वेट स्टेट से, तब वो उसको हम एक्सेस कर पाएंगे. Now, when the process has finished its user input output task, it brought back to the ready state and it again waits for its chance to come for processing. अब क्या होता है कि जो प्रोसेसेस है अगर फिनिश कर दी गई है, यूजर ने इनपुट आउटपुट टास्क सब फिनिश कर दी है, इट ब्रॉड बैक टू द रेडी स्टेट, और उसके बाद वो रेडी स्टेट में आ जाते हैं, और इट अगेन वेट्स फॉर द चांस टू कम फॉर प्रोसेसिंग. वंस द प्रोसेस फिनिशेस इट्स एंटायर एग्जीक्यूशन, इट मूव्स टू द टर्मिनेशन स्टेट, आफ्टर विच इट इज नो लॉन्गर कॉल्ड अ प्रोसेस. और जैसे ही प्रोसेसेस का जो भी एग्जीक्यूशन है वो फिनिश हो जाता है, तो वो कहाँ चला जाता है, टर्मिनेशन स्टेट पे चला जाता है, और वो उसको हम तब प्रोसेस नहीं बोल सकते हैं. दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. Thanks for watching my video. Please subscribe to my channel and don't forget to press bell icon. Do like, share and comment.